न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, with Nishura Marble, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, Asoso North Point School। पिकनिक मनाने गई युवती की अर्धनग्न शव पाए जाने से सनसनी, पुलिस को देख भड़के लोग, प्रशासन पर निष्क्रिय रहने का लगाया आरोप। जिगरी दोस्त ने दोस्त की ले ली जान, 1 फुट 2 माली का था मामला। सावधान, फिर से सक्रिय हो रहा जानलेवा वायरस कोरोना, मुख्यमंत्री ने किया सचेत, मास्क लगाने का दिया निर्देश। সম্ভবত একটু করে মাস্ক ব্যবহার করবেন। बीजेपी 2024 की कर रही तैयारी, पार्टी बैठक के बाद एकजुट हुए लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में। तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी। सलानपुर में पिकनिक मनाने गई एक युवती का अर्धनग्न शव 2 दिन बाद फुलबेरिया बेलकुंडा ग्राम पंचायत अंतर्गत सड़क के किनारे जंगल से पाए जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। शामडी मथाई चक से बोलकुंडा जाने वाली सड़क के किनारे जंगल में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। खबर मिलते ही आसपास के लोग जुट गए। घटना से लोगों में आक्रोश है। खबर पाकर पुलिस आई। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है। इसकी सूचना सलानपुर थाने के सामडी कैंप के पुलिस को दी गई। खबर पाकर एसीपी सुकांत बनर्जी, सलानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाथी, सामडी कैंप प्रभारी दीपक मंडल व पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। কতবার চুরি হয়েছে বলুন তো? চুরি ডাকাতি কতবার হলো? হ্যাঁ হয়েছে। এই মার্ডার কেন হবে? কেন হবে এগুলো? কেন হচ্ছে বলুন? সব বলকুন্ডাতে আপনারা কি প্রোটেকশন নাই কিছু গ্রামে? আমার মেয়ে ছেলেরা এখান থেকে, আমরা আসানসোল থেকে এখান থেকে আসি, কি প্রোটেকশন আছে রাস্তাটা বলুন? কেন প্রোটেকশন নেই? তাহলে কি করে হলো? কি করে ফেললো সবাই? ফেললো বলকুন্ডাটাকে কেন টার্গেট হচ্ছে? বলকুন্ডাতে আমরা কি হয়েছে এর আগে? চুরি কতবার হলো? আপনি কিনারা করতে পেরেছেন? চুরি ধরতে পেরেছেন? আমরা তো চুরি বলতে কি হয়েছে, লাস্ট হয়েছে তো আমরা তেল চুরি। ঘর চুরি হয়নি, 5 বার বাড়ি চুরি হলো, ব্যাটারি চুরি হলো। তার জন্য আমাদের কি করা হয়েছে? আমাদের সঙ্গে বসে সিসিটিভি করা হয়েছে। চামটামু ছিলেন আপনারা ধরুন লোক ধরুন। আপনার রেজাল্ট কি? অনেকটা আটকেছে, এটা বলবেন না। আগে কি হয়? হ্যাঁ অনেকটাই আটকেছে। এটা আনম্যারিড মেয়েকে রেপ হয়ে যাচ্ছে, বিরোধী করা মানা আছে। আপনারা নাকি সব দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। দায়িত্ব নেন। কি করছেন আপনারা? 3 লাখ টাকা সরকার ট্যাক্স দেবো, আপনারা বসে বসে ডিউটি করবেন। ঘরে বসে কেউ ডিউটি করে না। কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে? আপনি জবাব দিন। আপনি জবাব দিন, কেন হচ্ছে? আমাদের মেয়ে ছেলের কি প্রোটেকশন আছে? আপনার মেয়ে ছেলের কি প্রোটেকশন আছে বলুন? মেয়ে ছেলের প্রোটেকশন কিরকম ভাবে ঘরে ঘরে সম্ভব? আজকে কোন মহিলাকে কোথাও যাচ্ছে পিকনিকে যাচ্ছে বা কিছু হচ্ছে তখন কি হবে? আপনি শুনুন, আজকে আমার মহিলা আমার প্রোটেকশন কে দেবে? এভাবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে কোন মহিলা কোথায় যাবে, কোন ছেলে কোথায় যাবে, এরকম ভাবে প্রোটেকশন হয় নাকি? আপনি তো এরকম ভাবে কোন জায়গায় প্রোটেকশন পেয়েছেন আপনি? এই জায়গায় প্রত্যেক দিন এই জায়গাটা একটা করাপশনের জায়গা, একটা করাপশনের জায়গা। এটা রেগুলার হয়। একটা মেয়ের বডি পাওয়া গেছে, যেটা অর্ধনগ্ন প্রায়, ঠিক আছে? তো গ্রামের মানুষ বা আমরা সন্দেহ করছি যেটা মার্ডার, এবং আশা করছি রেপ প্লাস মার্ডার। তো এইরকম ঘটনা কি আগে ঘটেছে বা এরকম? না দেখুন, আগে এরকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আমাদের এই ফাঁকা রাস্তার মধ্যে মাঝে সাঝে যে বাইরের মানুষ হয়, ঝাড়খণ্ডের মানুষ বা ধরুন রানীগঞ্জের মানুষ হয় মদ খাচ্ছে বা একটা গ্রুপ করে মিটিং করছে, বা নেওয়াপুরের মানুষ, এরকম বহুবার হয়েছে। আমরা কমপ্লেনও দিয়েছি। তো কি মনে করছেন এটা? এটা দেখুন একটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে, কেন মেয়ে ছেলের ব্যাপার। কারণ রাত 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত এদিকে মেয়ে ছেলেরা যাতায়াত করে, আর এলাকাটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তো কি পুলিশের প্রশাসনের তরফ থেকে কি বলবে? প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়ে কি বলবে? দেখুন, আইসিকে আমরা লোকাল থেকেও কমপ্লেন দিল, বেশ একটু লোকাল থেকে মানে অনেক কিছুই বললেন ওনাকে, ঠিক আছে? আর দীপকবাবুর এখানে যে ক্যাম্প ইনচার্জ আছে, তিনি খুবই নিষ্ক্রিয় তিনি। ঘটনা পরশুদিন 1:30টার ভিতরে বললো আমি রঘুনাথপুর যাবো, ফতেপুর পিকনিকে যাবো। হ্যাঁ আসতে ফতেপুর পিকনিকে যাবো। আচ্ছা, তারপরে ওর কালকে 3টার সময় আসবে। আমরা 3টার সময় বাড়ি চলে আসি। তো 3টার পর দেখা যে আসা যায়নি, তখন আমরা একটু
সকালবেলাতে বলে ঠিক আছে আজকে দেখেন দেখার পর তো এই তো সকালবেলা যখন আমরা কি জানতে পারলেন সকালে? সকাল জানতে পারলাম যে একটা লাশ পড়ে আছে, তো দেখলাম যখন দেখলাম আমারই মেয়ে। কোন জায়গায় এটা পাওয়া গেছে? এটা বলবো ফুলবাড়িয়া জঙ্গল। কি মনে হচ্ছে আপনার? আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে এটা যে পাওয়া গেছে, কি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কি মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে দেখছিলি হয়তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকগুলো আগে মেরে ফেলছে এরকম একটা। কিছু বলো। दुर्गापुर में त्रिकोणीय प्रेम में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। हत्या कर शव को पत्थर खदान में फेंक दिया। कल रात दुर्गापुर में परूलिया में पत्थर खदान से अनिल भुइयां का हाथ पैर बंधा शव मिला था। इसके बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू की। अनिल की मां सीता भुइयां का दावा है कि आकाश भुइयां मृतक अनिल भुइयां का प्रिय मित्र था। हाल ही में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। सीता देवी का आरोप है कि आकाश ने ही अनिल की हत्या की है। वहीं अनिल के हाथ पर आकाश का नाम और आकाश के हाथ पर अनिल का नाम गुदा हुआ था। अनिल भुइयां का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और आकाश उस लड़की से शादी करना चाहता था। बुधवार सुबह अनिल को फुसलाकर आकाश ले गया था। कपड़े में बांधकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी आकाश अंडाल के बहुला में अपनी बहन के घर में छिप गया। आकाश भुइयां को बुधवार की रात दुर्गापुर थाना पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए गुरुवार को दुर्गापुर महकमा अदालत ले जाया गया। दुर्गापुर थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जाँच में तेजी लाना चाहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना के पीछे कोई और भी शामिल है या नहीं। কিছু বলো, বন্ধুকে মারলে কেন? सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3।
फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। इस साल कोरोना वायरस फिर से खौफ फैला रहा है। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बंगाल में भी संक्रमित की निशान मिले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि संभव हो तो मास्क का प्रयोग करें। ज्ञात हो कि 2019 के अंत में कोरोना ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया था। 2020 की शुरुआत में इसने बड़ा रूप ले लिया था। जानलेवा वायरस के कारण देशवासियों को घर में कैद होना पड़ा, कई निर्देशों का पालन करना पड़ा। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई, टीकाकरण हो गया, कोरोना की ताकत कम हो गई। एक साल के अंतराल के बाद कोरोना फिर से अपना सिर उठा रहा है। फिलहाल बंगाल में एक्टिव मामलों की संख्या 249 है। बीते 24 घंटे में 40 लोग संक्रमित हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को आगाह किया है। আমার একটা আবেদন থাকবে প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলোর কাছে, তারা আইসিসিগুলো যেন ভালো করে ইনফেকশন ফ্রি করেন। কারণ আমাদের কাছে কোভিড নিয়ে স্পেন আমেরিকা একটু বেশি হচ্ছে এবং এখানেও কেরালাতে হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। যারা যারা পারবেন সম্ভবত একটু করে মাস্ক ব্যবহার করবেন। আমরা ফোর্সফুলি কিছু করছি না, বিজনেসেরও কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু যারা যারা বিভিন্ন লোকালয়ে যাবেন, বিভিন্ন কনজেস্টেড এরিয়ায় যাবেন, কারণ বাইরে থেকে তো অনেক মানুষ এখানে আসে, কে কোথায় একটা রোগ নিয়ে চলে এলো, তারপরে এটা স্প্রেড করে, স্প্রেড যাতে না করতে পারে সেই জন্য আমাদের সতর্কতা। कुल्टी क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि कुल्टी स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए। लगता है कि अब उन्हें इस समस्या से निजात मिल जाएगी। लोकसभा उपचुनाव के बाद जब सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कुल्टी आए तो स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसे केंद्रीय रेल मंत्री के पास मुद्दा रखा था। आज फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के लिए डिप्टी मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में रेलवे और आसनसोल नगर निगम के इंजीनियरों ने इलाका का दौरा किया। यह 3 प्रस्ताव में एक पर सहमति बनी है ताकि फ्लाईओवर बनने से लोगों को सुविधा हो। एक अच्छा समय हो गया, गोल्डन समय कि फ्लैट कॉरिडोर का भी काम हो रहा है। उस पर इस इलाका में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रपोजल आया है। कॉरपोरेशन में रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आए थे, हम लोग जॉइंट आज विजिट किया। 3-4 इनका प्रपोजल था। 3-4 प्रपोजल में एक प्रपोजल जो ये आपका इस साइड से होते हुए जो फ्लाईओवर ब्रिज है, इसमें कोई मकान का नुकसान नहीं हो रहा। बकिया में जो है वाई टाइप का जो बनाने का है, ये यू टाइप होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। वाई टाइप भी हम लोग इसको देखा, वाई टाइप में है जो एक पतियाना के मोहल्ला और एक इस साइड में वहाँ से उठ के जीत जाएगा, जिसमें काफ़ी मकान और दुकान का नुकसान हो रहा है। तो माननीय ममता बनर्जी का जो निर्देश हम लोग का है, उसको मानते हुए हम लोग चलते हैं कि लोगों का, हम लोग को उन्नति करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लेकिन लोगों को क्षति भी नहीं पहुँचे। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखे हुए आपके इलाके के काउंसलर सलीम साहब इस इलाके का और लोग थे, रेलवे डिपार्टमेंट के लोग थे और कॉरिडोर के लोग भी थे। हम लोगों ने यू टाइप वाला को प्रपोजल को मान्यता दिया है कि इसको बनाने से इस पर जो है जो ज़मीन पड़ रही है वो चाहे सेल का है या रेल का है, और कुछ अगर हमारा राज्य सरकार का ज़मीन पड़ेगा तो उसको हम लोग। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। के साथ मेरी मन्नू तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेश साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा,
आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर, हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। वास्तव में बहुत आनंद आता है जब जाड़े के समय में लिट्टी चोखा खाने को मिलता है। लोकसभा चुनाव को लेकर शिल्पांचल में भाजपा ने सक्रियता तेज कर दी है। बुधवार की देर शाम जिला कार्यालय में एक और जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे के नेतृत्व में बैठक की गई। इसके बाद प्रदेश भाजपा के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में रविंद्र नगर में लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया। यहां भी प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे के साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सारका, सांसद लाकेट चक्रवर्ती, सांसद सौमित्र खां, विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, अग्निमित्रा पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे, उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और पुरानी जो हमारा पुराना जो इतिहास रहा, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकसभा का चुनाव होना है, तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना? देखिए, ये आज का एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम है, आसनसोल है और आसनसोल एक ऐसा कल्चरली उसको देखेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से तो ऐसा ये बिहार, झारखंड और यूपी का एक मिला हुआ जगह है और इस तीनों राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और लिट्टी चोखा एक ऐसा डिश है खाने का बिहार का जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है और अब तो सभी लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं, हमारे बंगाल के लोग भी, झारखंड के लोग भी, और आज आसनसोल में रहने वाले सब लोग एक साथ इकट्ठा बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, जो आगे देश में उत्साह का वातावरण बनना है। আজকে একটা পুরো একদম হোমলি অ্যাটমসফিয়ারে একটা গেট টুগেদার
খাওয়া দাওয়া, ব্যাস সারা দিন মিটিং 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 চলছে। একটা ব্যাস এটার মাঝে একটা ব্রেকআপ, কার্যকর্তাদের নিয়ে নেতৃত্ব একসাথে বসে খাবার খাচ্ছে। এর চেয়ে বড় কি হতে পারে? এর চেয়ে বড় পাওনা আমাদের কাছে কিছু নেই। আমরা ভীষণ খুশি, ভীষণ আপ্লুত। সমস্ত কার্যকর্তারা, আমার এখানে যত কার্যকর্তা আছে, ভাই বোনরা রয়েছে, মাতৃশক্তির ব্যাপক যোগদান ছিল, সবাই খুব খুশি। आज आरटीओ तथा आसनसोल दुर्गापुर ट्रैफिक द्वारा चित्रा मोड़ पर संयुक्त वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन मालिकों को राज्य सरकार की नई छूट के बारे में जानकारी दी गई। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 के 31 दिसंबर तक जिनका टैक्स फेल है वह अगर 29 फरवरी 2024 तक टैक्स दे देते हैं तो उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, उनको जुर्माना नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि परमिट के मामले में भी जिनका परमिट का पैसा बाकी है वह अगर जनवरी में चुका देते हैं तो 100% जुर्माना माफ किया जाएगा और फरवरी में चुकाने पर 80% जुर्माना माफ किया जाएगा। আরটি অফিস এবং ট্রাফিক জয়েন্টলি আমরা এখানে রেড করছি। মূলত প্রাইভেট গাড়ির উপর জোর দিয়ে সমস্ত রকম গাড়ি ধরা হবে। মূলত প্রাইভেট কার যাদের সিট বেল্ট ছাড়া ঘুরছেন বা ট্যাক্স ফেল আছে, কারণ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সরকার একটা বিশাল বড় ছাড় ঘোষণা করেছেন। যাদের 31/12/2023 অব্দি ট্যাক্স ছাড় ট্যাক্স ফেল আছে, তারা যদি 29/2/2024 মধ্যে ট্যাক্স দেন, তাদের মূল ট্যাক্সটা দিলেই হবে। জরিমানার যে পোর্শনটা থাকবে সেটা পুরোটাই সরকার মুকুব করে দিয়েছেন। এবং পারমিট এবং ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও জানুয়ারি মাসের মধ্যে দিলে পরে 100% জরিমানা মুকুব এবং 29 ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিলে পারলে 80% জরিমানা মুকুব হচ্ছে। বিশাল বড় সুযোগ রয়েছে, যার জন্য আমরা এটা প্রচারও করছি, তার সাথে সাথে আমরা চেকিংও করছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।